welcome back, and in this video you will learn what dictionaries are. So basically dictionaries are data type in Python programming, just like our list, tuple or sets. It is a data type. So in this video we will learn everything we need to know about dictionaries. So let's get started. So the first thing we need to know about dictionaries are that it is the key value pair system. तो जब भी आप कोई डाटा सेव कर रहे होते हो, मतलब डिक्शनरीज में डाटा बना रहे होते हो, सो बेसिकली वो की और वैल्यू पेयर में एलिमेंट बनेगा जो भी आपका डाटा है. तो अ डिक्शनरी इज अ म्यूटेबल, विच मीन कि आप इसको एडिट कर सकते हो बनाने के बाद. और इट इज अनऑर्डर करेक्शन ऑफ यूनिक की एंड वैल्यू पेयर्स. जैसे मैंने आपको बताया, की एंड वैल्यू पेयर्स में आपकी डिक्शनरी बनेगी. जब भी आप अपनी डिक्शनरी बनाओगे तो आपको की और विद द हेल्प ऑफ कॉलन अपनी की एंड वैल्यू को अलग करके बनाना है. So Python uses hashing to find any value almost instantly, no matter how large the dictionary is. So आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि to find the meaning of the word Python in a real dictionary, you don't need to read every pages. You look up the keyword Python and jump straight to the value, which means the definition which is written under the Python keyword. And Python dictionaries work exactly the same way. So that means कि जो आपकी की है, like in this case Python, और आपको उसकी डेफिनेशन फाइंड करनी है विच इज योर वैल्यू. तो उसको आप की के मदद से आप उसको फाइंड कर सकते हैं. तो पाइथन में भी आप अगर अपनी की प्रिंट करेंगे तो उससे आपकी वैल्यू आपको मिल सकती है. अगर आप जानना चाहें आपकी की के अंदर कौन सी वैल्यू है, तो बेसिकली द डेफिनेशन दैट यू हैव इनसाइड द की, वो आप प्रिंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ की. So now I will explain dictionaries with the help of example in VS Code. So let's get going. So as you can see, dictionary is a collection of key and value pairs, and it is ordered and changeable. No duplicates allowed. इसमें भी आप duplicates allowed नहीं है. Just like your sets. So let's say कि मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ कैपिटल नेम की. I will make a dictionary of capitals. तो टू मेक अ डिक्शनरी, सबसे पहले मैंने वेरिएबल कैपिटल्स बनाया जिसमें मैं कैपिटल्स वैल्यू रखूंगा विद द की एज माय कंट्री नेम. तो सबसे पहले हमको ये, तो कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमको सबसे पहले जो भी हमारा की है वो टाइप करना होगा. यहाँ पे देख रहे की एंड वैल्यू पेयर्स. तो सबसे पहले मैं अपना की टाइप करता हूँ. लेट्स से माय फर्स्ट कंट्री इज इंडिया, एंड इसके बाद कॉलन and then value. In my case, the capital of India is, in this case, New Delhi. New Delhi is the capital of India, and comma, and I will write, let's say my second country is USA. और मैं भी रसिया लेते हैं फर्स्ट, बिकॉज रसिया एंड इंडिया के कनेक्शंस, डिप्लोमेटिक कनेक्शंस आर much better. And after this, what is the capital of Russia? That is Moscow. And let's say now our third country is USA, and uh, capital of USA is Washington DC. DC. Let's say our fourth country is China. The capital, which China, and capital of China is Beijing. So I will write Beijing. So this is how you can make a dictionary. You just have to write the key first and then colon and then your value.
In my case, I am taking making dictionary about capital of different countries. So my country is key and value is my capital of which country I am making. So let's say अ जेंटल रिमाइंडर, जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में बताया कि आप अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ अ पर्टिकुलर डाटा टाइप, so you can just use there and the data type. In my case this is now capital, and if I run this, so these are all the data types, I mean the methods or attributes I can use with the in my dictionary data type. ये सारे मैं यूज कर सकता हूँ, जैसे अपडेट, वैल्यूज, की आइटम, ये सब करना, क्लियर करना, कॉपी करना, सब क्लास बनाना, पॉप करना, सेट डिफॉल्ट. So these are all the functions and method I can use on my dictionaries. Let's say कि आपको अगर इसी के definition चाहिए, इसके description चाहिए, तो वो भी आप print करवा सकते हैं with the help of help function. I will make this so print and write help, and after writing help write your data type. My this case capital. So if I run this, it will give me all the description about dictionary and their methods. Here methods start हो रहे हैं. So this is the reminder. मैंने ये previous videos में भी आपको बताया. You can go through them if you would like to know more about them. अगर आपको सारे description और ये सब चीज़ें चाहिए, यहाँ पे सब कुछ है. So now let me just make this a comment. So let's say कि अगर आपको वैल्यू के हिसाब से, मतलब की के हिसाब से वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है, तो आप कैसे कर सकते हैं? You could do that with the help of get method print. So to get any value from the dictionary, you have to use key function, मतलब get function. तो print, और ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कैपिटल्स, वेरिएबल का नाम, डॉट डॉट गेट, एंड इन पैरेंथेसिस यू हैव टू राइट द नेम ऑफ कंट्री जिसका आप वैल्यू निकालना चाहते हैं. लेट्स से मैं सबसे पहले इंडिया का निकालता हूँ. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये प्रिंट कर देगा. एंड इफ आई रन दिस, इट विल प्रिंट न्यू दिल्ली. तो इट इज़ प्रिंटिंग न्यू दिल्ली, और मैं इसको भी काट देता हूँ. लेट्स से कि मेरे को यूएसए का मेरे को प्रिंट करना है कैपिटल, एंड सो ना इट इज़ प्रिंटिंग वॉशिंगटन डीसी. ये ऐसे आप with the help of get method you can print the value of your key. आप यहाँ पे की टाइप करेंगे so उसका वैल्यू प्रिंट करके दे देगा यहाँ पे. और दिस अनदर वे आप इसको कर सकते हैं प्रिंट विद द सेम वे, बट इसका सिंटेक्स आपको थोड़ा सा फेमिलियर लगेगा. सबसे पहले आपको प्रिंट करना है एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स. आपको यहाँ पे की का अपना नाम डालना है जिससे वो कैपिटल मतलब वो वैल्यू प्रिंट करेगा. लेट्स से कि यहाँ पे हमारे ये हैं इंडेक्स वैल्यू, ये पहले ही दिखा रहा है. तो लेट्स से कि मैं इस बार रशिया का कैपिटल मेरे को जानना है क्या है, एंड if I print this, it is print in Moscow. तो ये भी एक तरीका है जिससे आप प्रिंट करवा सकते हो अपने वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ योर की. तो बेसिकली इन डिक्शनरी यू यूज कीज टू फाइंड एनी वैल्यू. आपका आप कीज का यूज करते हो कोई भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो. और मैं क्या कह रहा था, देखिए ये वाला जो हमारा है ना प्रिंट का, ये मैं नॉर्मली आपको भी रेकमेंड नहीं करूंगा यूज करने के लिए. लेट्स से कि अगर मेरे को जापान का जानना है,
बट हमने जापान तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं. एंड इफ आई प्रिंट दिस, इट विल गिव मी एन एरर. दिस इज की एरर सेइंग कि जापान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे कीज में. बट लेट्स से कि अगर मैंने ये सेम चीज यहाँ पे करने की कोशिश की, जापान, एंड आई विल मेक दिस नॉर्मल. ओके, अब देखिए यहाँ पे नन प्रिंट करेगा. अगर आप गेट मेथड से आप प्रिंट करवाना चाहें अपनी आप की वैल्यू, तो अगर आपकी की वहाँ पे एग्जिस्ट करती भी नहीं होगी डिक्शनरी में, तो वो नन आपको प्रिंट करके देगा. और ये नॉर्मल मेथड से अगर हमारी डिक्शनरी में वो वैल्यू नहीं होगी, तो एरर प्रिंट करके देगा. तो दिस इज वाई आई रेकमेंड कि आप गेट मेथड से ज़्यादातर अपनी वैल्यूज प्रिंट करें, कि बाय मिस्टेक अगर आपने कोई आउट ऑफ डिक्शनरी की डाल दी आपने, तो वो एरर ना दे. क्योंकि ऐसे आप नॉर्मली यूज करेंगे इसका, तो एरर देगा, फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि एरर आ रहा है. तो दिस इज वाई दिस इज बेटर. मैं इसको हटा देता हूँ. एंड वी कैन ऑल्सो यूज दिस विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. हम इसको इफ और एल्स स्टेटमेंट के सहायता से भी कर सकते हैं. लेट्स से कि मैं इफ कैपिटल्स डॉट गेट, मैं जापान का फाइंड कर रहा हूँ, जापान, एंड आई विल विद द हेल्प ऑफ कॉलन. यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई, यानी हमारा ये गेट वैल्यू को गेट कर पा रहा है, ये कोई भी वैल्यू गेट कर पा रहा है, तो ये प्रिंट कर देंगे दैट कैपिटल एग्जिस्ट. And if this is false, so it will basically print that capital does not exist. So that capital does not exist. And if I run this, so basically it will print कि that capital does not exist, क्योंकि हम जापान को खोज रहे हैं, जापान का कैपिटल, विच हमने डिक्शनरी में हमने लिया ही नहीं है. तो लेट्स से कि मैं जापान के जगह यहाँ पे चाइना लिख दूँ, चाइना. एंड इफ आई प्रिंट दिस नाउ, तो यहाँ पे दैट कैपिटल एग्जिस्ट ऐसा प्रिंट हो रहा है. So this is the way you can check if a key exists in the dictionary or not. You can use the get method, जिससे अगर वो exist करती है तो वो value print कर देगी. If it doesn't, it will print none. So now we will, तो इस comment बना दिया मैंने. Okay. So now let's update our dictionary. Let's add another country with their capital. सो हाउ टू अपडेट आवर डिक्शनरी. इसके अंदर कोई और वैल्यू ऐड करने के लिए, यानी कोई की प्लस वैल्यू ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है कैपिटल्स, यानी वेरिएबल का नाम, कैपिटल्स डॉट अपडेट. सो विद द हेल्प ऑफ अपडेट मेथड आप अपनी कोई भी डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हो, यानी आप कोई भी की वैल्यू ऐड कर सकते हो. लेट्स से कि मेरे को की जर्मनी, तो जर्मनी, एंड विद द हेल्प ऑफ कॉलन मैं सेपरेट करूंगा की और मेरी वैल्यू को. एंड लेट्स से कि मेरी वैल्यू क्या है, एक सेकेंड. कैपिटल ऑफ जर्मनी इज बर्लिन, बर्लिन. तो अब इसको मैं डिक्शनरी में ऐड कर देता हूँ, ये डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट्स. तो नाउ इसके बाद अगर मैं अपनी डिक्शनरी प्रिंट करूँगा, तो मेरी न्यू डिक्शनरी में ये न्यू कैपिटल ऐड हो जाएगा, बर्लिन, जो जर्मनी का कैपिटल है. so I will just update this.
तो ये सबसे पहले हमारी इंडिया, फिर न्यू दिल्ली, फिर रसिया, और ये लास्ट में देखिए जर्मनी एंड बोलिन ऐड हो गई है। रीड दिस। सेम अपडेट मेथड से ही आप अपनी कोई भी मतलब डिक्शनरी है आपकी, तो आप कोई भी की एंड वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। तो लेट्स से कि मतलब किसी की भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। रुकिए मैं अब करके बताता हूँ। कैपिटल्स डॉट अपडेट टू अपडेट एंड दिस कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर ही आपको लिखना है, इसका ध्यान रखिएगा। पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद फिर कोट्स। अगर आपको स्ट्रिंग ऐड कर रहे हो तो स्ट्रिंग से। तो सबसे पहले लेट्स से कि मैं इंडिया का वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, बेसिकली इंडिया का कैपिटल में चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि इंडिया का कैपिटल मैंने चेंज कर दिया मुंबई से, मतलब न्यू दिल्ली से मुंबई। और अब मैंने प्रिंट करूंगा अपनी डिक्शनरी, तो मेरी इंडिया का कैपिटल मुंबई बन चुका होगा। तो देखिए इंडिया इज कंट्री एंड मुंबई इज माय कैपिटल। फिर रशिया एंड मॉस्को, फिर ये देखिए जर्मनी और बर्लिन भी है यहाँ पे। तो विद द हेल्प ऑफ अपडेट फंक्शन मेथड, सो आप इसके मैं अपडेट मेथड के सहारे आप एंड में कोई वैल्यू ऐड भी कर सकते हो, की एंड वैल्यू, और आप किसी की वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे यूएसए मैंने टाइप कर दिया, तो यूएसए का मुंबई हो जाएगा। तो देखिए यूएसए का मुंबई हो गया कैपिटल, विच इज नॉट इवन देन, मैं इंडिया ही रखूंगा, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ पॉप मेथड आप किसी भी की वैल्यू पेयर को आप डिक्शनरी से हटा सकते हो। तो टू रिमूव एनी की वैल्यू पेयर यू हैव टू यूज पॉप मेथड, एंड इन पॉप आपको कोई भी जिसका भी आपका की वैल्यू आपको हटाना है उसका की आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। लेट्स से कि मैं हटाता हूँ चाइना को। लेट्स से कि चाइना और मैं अपनी डिक्शनरी से हटाना चाहता हूँ। एंड इफ आई प्रिंट दिस, देखिए इंडिया प्रिंट हो रहा है विच जिसका कैपिटल न्यू दिल्ली है, फिर रसिया जिसका मॉस्को है, फिर यूएसए, वॉशिंगटन डीसी, बट चाइना नहीं है। तो बेसिकली पॉप ने क्या किया, चाइना का जो की और वैल्यू दोनों है वो डिलीट कर दिया, मतलब हटा दिया बेसिकली। तो लेट्स से आपको अगर पॉप आइटम एक मेथड है जिससे अगर आपको लास्ट की अपनी वैल्यू चेंज करनी है, मतलब डिलीट करनी है, जो भी आपने लास्ट में इंसर्ट किया है अपने डिक्शनरी में, कोई भी वैल्यू आपने। लेट्स से मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ, लेट्स से कि यहाँ से मैं ये जर्मनी और पोलैंड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फिर कॉमा, और ये हो गया। तो दिस इज अनदर मेथड विच इज कॉल्ड पॉप आइटम। सो पॉप आइटम क्या करता है, वो जो भी आपने अपनी डिक्शनरी में वैल्यू डाली है लास्ट में, वो डिलीट कर देगा। तो लेट्स से कैपिटल डॉट पॉप आइटम, ये देखिए पॉप आइटम यहाँ पे आ रहा है। और इसका अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके रखूँ तो ये देखिए रिमूव्स द रिटर्न सेम सम की वैल्यू पेयर एज टू टपल, बट दिस इज एन एरर इफ द की। ओके, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन इसका नहीं दे रहा, मैं आपको एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को कोई वैल्यू पास करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आई विल जस्ट प्रिंट दिस। सो देखिए यहाँ पे इंडिया है, रसिया है और यूएसए है। तो जो लास्ट में हमने डाला जर्मनी एंड बोलिन, वो दोनों हट गया। तो ये पॉप आइटम जो लास्ट में होता है उसको हटा देता है, पॉप कर देता है, बेसिकली रिमूव कर देता है। मान लीजिए इसको चाइना वाले को मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया, तो अब चाइना भी रहेगा, बस ये नहीं रहेगा अपना जर्मनी। मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ और अब सिर्फ पॉप आइटम करता हूँ, तो हमारा पॉप लास्ट में क्या, चाइना है। तो चाइना हमारा फिर से हट जाएगा। तो देखिए इंडिया, रसिया और यूएसए हो रहा है,
बट चाइना हमारा लास्ट में हमने ऐड किया था, तो जो लास्ट में जो भी आइटम है वो हट जाएगा पॉप आइटम से। चाइना नहीं है हमारा इसमें। So to print pop item, you don't need to insert any key. Pop item will basically remove the last key value item you have inserted. So I will now move forward. So now let's say कि आपको सारी डिक्शनरी अपनी पूरी रिमूव करनी है, क्लियर करनी है बेसिकली. So capitals dot clear and parenthesis. तो ये क्या करती है? Remove all the item from dictionary. तो ये तो क्लियर नाम से आपको पता चल जा रहा होगा. तो ये मैंने किया, तो ये हमको फिर एम्प्टी डिक्शनरी दे रही है. ओके, I will just delete the terminal now. तो ना अभी तक तो हमने देखा कि हम सिर्फ वैल्यू प्रिंट करवा रहे बेसिकली. तो लेट्स से कि हमको सिर्फ कीज प्रिंट करवानी है, जितनी भी हमारी कीज है, मतलब सारे कैपिटल हमको प्रिंट करवाने हैं और हमको वैल्यू प्रिंट नहीं करवानी. तो यू कुड डू दिस विद द हेल्प ऑफ कीज मेथड. तो लेट्स से दिस इज हाउ यू कैन यूज कीज मेथड. तो सबसे पहले कैपिटल का नाम, मतलब आपका वेरिएबल का नाम, एंड डॉट कीज इज द मेथड. Returns a set like object providing a view of the dictionaries keys. जितने भी है set like object से वो देता है. देखिए 1 मिनट, ये रहा. set like object providing a view on the dictionary keys. तो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट टाइप में हमको देगा. हम वो आगे सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. जितनी हमारी कीज है ना बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं. वेल जैसे आपने यहाँ पे देखा, बट वी विल लर्न दिस इन फ्यूचर वीडियोस. लेट्स से कि मैं सबसे पहले कीज प्रिंट करवाना चाहता हूँ. यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग इन पैरेंथेसिस. तो लेट्स से कि मैं इसको वेरिएबल के अंदर ले रहा हूँ. कीज वेरिएबल है अपना, एंड आई वांट टू प्रिंट माय कीज. कैपिटल की जगह यहाँ पे मेरे को सिर्फ कीज प्रिंट करनी है. एंड आई विल रन दिस प्रोग्राम. तो बेसिकली दिस इज ऑल आवर कीज, इंडिया, रसिया, यूएसए एंड चाइना. तो वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रिंट ऑल द कीज इन डिक्शनरी, आप कीज मेथड का यूज कर सकते हैं. देयर इज वन मोर थिंग, वी कुड यूज for loop here to print all of our keys, because keys are iterable. So basically our keys are iterable, so we can use for loop keys in. So for every key in हमारे capital dot keys में we will print key. और if I run this, it will print all my keys in the form of in next line. जैसे for loop में काम करता है ना, वैसे ही इंडिया, रसिया, यूएसए एंड चाइना. So anytime you need to iterate your keys that you obtain from keys function method, capital dot keys method से जो भी आपको iterate अगर कभी टाइम करना है keys को अपने, तो आप for loop का यूज कर सकते हैं. and it will give you the whole value by iterating each of them. India, China, USA, India, Russia, USA and China. There is another thing. There is also a value method which is similar to the keys method. So I will take a value is variable, and I will with the help of, देखिए कैपिटल वेरिएबल अपना नाम डॉट वैल्यूज मेथड. ये क्या करता है? रिटर्न एन ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग अ व्यू ऑन डिक्शनरी वैल्यू. ओ नहीं, ये नहीं, ये इधर का. ठीक है, रिटर्न एन ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग अ. तो बेसिकली ये सारे वैल्यूज प्रिंट करता है. तो आई विल प्रिंट, पता नहीं वहाँ पे क्या लिख के आया था. ओके, वैल्यूज. सो जस्ट लाइक आवर कीज मेथड, हमारे वैल्यूज मेथड भी रिटर्न करेंगे हमको ऑब्जेक्ट्स. these are all the objects that resembles a list. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट्स के होते हैं. सो बेसिकली
ये उसी टाइप से हमको प्रिंट करके दे रहा है। ऑब्जेक्ट से ये भी लिटरली मतलब काइंड ऑफ। तो ये सारे हमारे कीज है, मतलब वैल्यूज है बेसिकली। न्यू दिल्ली, मॉस्को, वॉशिंगटन डीसी एंड बेजिंग। तो जैसा आप उसमें कर रहे थे नॉर्मली, मतलब की वाले में आप इटरेट कर रहे थे एवरी वैल्यू, so we can also do that with this for every value in capitals dot values we will print values. Wait, oh मैंने values ये लिया ना, value इधर है। So what will it do is it will iterate every, wait a second, होया। मैं यहाँ पे कॉलन भूल गया था, आपको भी कॉलन का ध्यान रखना है। तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये जितने भी हमारे वैल्यूज हैं, यानी कैपिटल के अंदर जितने भी हमारे वैल्यूज हैं, उसको इटरेट करेगा एक एक करके और प्रिंट करेगा, जस्ट लाइक इन फॉर लूप, क्योंकि फॉर लूप यूज कर रहे हैं हम। तो इट इज न्यू दिल्ली, मॉस्को, वॉशिंगटन डीसी एंड बीजिंग। So what it does is it is taking every value in a value method and printing it one by one with the help of for loop। ऐसे आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टाइम ऐसा चाहिए तो आप कीज से या फिर वैल्यू से आप फॉर लूप लगा के अपने सारे वैल्यूज और कीज वन बाय वन प्रिंट करवा सकते हैं with the help of for loop। Now moving forward, so I will now explain the item method। There is something called item method। So सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ आइटम नाम का। तो इज इक्वल टू, और मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, कैपिटल्स डॉट आइटम। इट इज काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड बट आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। तो सबसे पहले प्रिंट कीजिए आइटम्स। तो ये हमारा आइटम मेथड है जो हम कैपिटल पे यूज कर रहे हैं। ये सारे आइटम्स जो हमको है वो प्रिंट कर देगा। आइटम्स यानी सारे की और वैल्यू पेयर्स। देखिए, पूरे की और वैल्यू पेयर्स प्रिंट करेगा। बट आइटम जो हमारे रिटर्न करता है वैल्यू, वो वन सेकेंड, इट इज प्रिंटिंग। तो मैं अभी बता देता हूँ। आइटम रिटर्न्स अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट which resembles a 2D list of tuple। So as you can see, this is how it returns। जो ये वैल्यू रिटर्न करता है, it resembles a 2D list of tuple which is kind of an objects also। So let's say कि हमको इसको, वन सेकेंड, so we can make use of this with the help of for loop। I will just make this both a comment। एक मिनट, कहाँ गया, मैं इनको कमेंट बना के लेट्स से कि मैं फॉर एवरी कीज या एवरी की वैल्यू इन और कैपिटल आइटम्स। तो एवरी की एंड वैल्यू इन आवर कैपिटल्स आइटम, तो जितने भी हमारे कीज एंड वैल्यूज हैं हमारे आइटम्स के अंदर, यानी बेसिकली पूरे हमारे ये सब आ गए, ये रहे इंडिया और रसिया, मतलब कैपिटल और हमारे कंट्रीज, उसको हमको अगर सबको साथ में प्रिंट करना है, लेट्स से विल प्रिंट। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो इटरेट करेगा हमारी सारी की एंड वैल्यू पे। की एंड वैल्यू ये हमारी की पे करेगा, ये हमारी वैल्यूज पे करेगा जो हमारे आइटम्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ये पूरे लूप में जाएगा और हर एक को चेक करेगा, हर एक को हम प्रिंट करवाएंगे इसमें। हर एक प्रेजेंट होने के बाद यहाँ पे लेट्स से विद द हेल्प ऑफ एफ स्ट्रिंग, ओके, प्लेस होल्डर में हम की प्रिंट करवाएंगे एंड हेयर वी विल प्रिंट वैल्यू। एंड इफ आई प्रिंट दिस,
So this is our whole dictionary laid out. We have iterated over every key and value pairs. So this is how you can use for and item with the help of item method. आप you So this is how you can use your for loop and item method to iterate through your program and print keys and values side by side in Python. So now we have covered what dictionary is. It is a collection of keys and value pairs. Ordered होते हैं ये and changeable होते हैं. No duplicates are allowed. And now we have also seen some methods जैसे get मेथड हमने देखा, अपडेट मेथड देखा, पॉप देखा, पॉप आइटम देखा, क्लियर मेथड देखा, and we have also seen keys method, values method, and item methods. So now I will tell you some questions that you have to do and give you some quick recap about all this with the help of slides. So now I will give you a quick recap with the help of slides. So we know key and values are what dictionaries is. की वैल्यू पेयर का सिस्टम है डिक्शनरी हमारा एंड हमने ये देखा कि जब भी हम इसको की वैल्यू हम बनाते हैं तो कॉमा से सेपरेट करना होता है हर एक की वैल्यू पे, जैसे हमारी यूएसए एंड वॉशिंगटन की एंड वैल्यू है, उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट और उसके बाद नेक्स्ट, ऐसे कॉमा करके। फिर इसके बाद एक्सेस करने के लिए मैंने ये तरीका आपको बताया था, प्रिंट कैपिटल, और जैसे आप इंडेक्स लेते हो, इंडेक्स की जगह आपको की लिखना है और तो इससे आपका ये कैपिटल प्रिंट हो जाएगा जैसे मॉस्को। So the core idea of dictionary is instead of remembering the item number 3, you look up by something meaningful, like a meaningful name. In this case रसिया हमने लिया। तो जब भी आप डाटा एक्सेस कर रहे होते हैं इसमें मतलब की एंड वैल्यू में, तो हम डिक्शनरी में बेसिकली, तो आप इंडेक्स नंबर से नहीं करते, की से करते हैं। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। और ये भी बताया था मैंने कि आप ये वाला यूज़ करेंगे, और जर्मनी अगर नहीं है, जैसे जर्मनी हमारे प्रोग्राम में नहीं था, तो ये एरर शो कर देगा, की एरर शो करेगा। सो इंस्टेड आप गेट मेथड का यूज़ कीजिए, जिससे आपका रिटर्न नन करेगा इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग द प्रोग्राम बिकॉज ऑफ मिसिंग की। तो गेट मेथड इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि अगर आपका की नहीं है वहाँ पे कोई भी, जैसे जर्मनी यहाँ पे लिया हमने, जर्मनी हमारे की में नहीं है, मतलब डिक्शनरी में नहीं है, तो हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा और इट विल जस्ट प्रिंट नन। और आप कॉमा करके यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, यू कैन प्रोवाइड इवन योर ओन फॉल बैक मैसेज, जैसे मैंने इसको फॉर लूप से किया था, मैं इफ एल्स से किया था मैंने। तो ये जैसे नॉट फाउंड अगर नहीं मिला तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। फिर व्यू हमको पता है कैसे करते हैं, कीज का हम पूरे कीज मेथड से एंड वैल्यूज मेथड, आइटम मेथड्स। फिर कीज क्या करता है, रिटर्न कीज, वैल्यूज रिटर्न वैल्यूज, एंड आइटम्स रिटर्न एवरी की वैल्यू पेयर टुगेदर। तो मूविंग फॉरवर्ड वी नो अपडेट मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं एक ब्रांड न्यू की वैल्यू पेयर ऐड करने के लिए, या फिर हम एग्जिस्टिंग की का हम वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। जैसे यूएसए का हमारा वॉशिंगटन डीसी था, हमने यहाँ पे लास वेगस हमने किया। तो नाउ कैपिटल ऑफ यूएसए इज लास वेगस। और राइटिंग एग्जिस्टिंग वैल्यू, बेसिकली अपडेट से आप दोनों कर सकते हैं। Dot update checks whether the key already exists. If it does, the value is replaced. If not, new pair is added. So removing, we can do this with the help of pop, जिससे आप जो भी की डालेंगे वो रिमूव द स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर। और क्लियर मेथड पूरे डिक्शनरी को वाइप आउट कर देगा। So remember to be careful with the clear method. There is no built-in undo, so make sure you really want to wipe out everything. So now we know how we can iterate थ्रू अ डिक्शनरी। सो फॉर, जैसे मैंने आपको बताया था आइटम से कैसे आप ऐसे यू कैन प्रिंट योर की एंड डिक्शनरी। फॉर की वैल्यू, की कॉमा वैल्यू इन कैपिटल आइटम्स, तो ये हर एक कैपिटल आइटम्स के अंदर सारे की वैल्यू पे जाएगा, की एंड वैल्यू, और यहाँ पे की प्लस वैल्यू और ऐसे प्रिंट करेगा। मैंने एफ स्ट्रिंग से किया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों आउटपुट सिमिलर ही आएंगे। तो फॉर की एंड वैल्यू इन कैपिटल डॉट आइटम्स, ये क्या करता है,
ग्रैब बोथ द की एंड वैल्यू टुगेदर ऑन एवरी टर्न। ये जैसे जैसे लूप में चलेगा वैसे वैसे वो वैल्यू लेते रहेगा, और फिर लास्ट में हमने उसको प्रिंट कर दिया है। दिस टू वेरिएबल पैटर्न इज अ स्टैंडर्ड वे टू लूप थ्रू एनी डिक्शनरी। तो दिस इज हाउ यू कैन लूप थ्रू एनी डिक्शनरी। मैंने इसका आपको प्रैक्टिकल यूज करके भी आपको दिखाया पूरा राइट करके अच्छे से। So we also have nested dictionaries. A dictionary value can themselves be dictionaries, perfect for storing record with several fields. So फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, एंड ये डिक्शनरी हमारी सबसे पहली, और उसके अंदर S101 स्टूडेंट N01 होगा, और उसके बाद ये हमारी की है, और हमारी ये पूरी वैल्यू है, इस की पूरी वैल्यू है। और इसके वैल्यू के अंदर हमने एक और डिक्शनरी बनी हुई है, हमारी बनी हुई है, जिसके अंदर नेम है एक, विच इज की, और उसकी वैल्यू आयसा है, और एक और है नेम ग्रेड, और उसके बाद ग्रेड की वैल्यू ए है। सेम इसमें है नेम, ये किया है डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी है, मतलब ये डिक्शनरी सबसे ऊपर वाली ये, फिर इसके बाद ये हमारी वैल्यू मतलब की ये है, और ये वैल्यू है पूरी, और इसके अंदर ये हमारी की है नेम, और इसकी वैल्यू रोहन है, और ये ग्रेड की, और ये बी इसकी वैल्यू। तो इसको प्रिंट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट और स्टूडेंट, और उसके बाद में ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहली अपनी वैल्यू यानी मतलब की, और उसके बाद दूसरा की, तो इसकी वैल्यू दे देगा इसके अंदर की वैल्यू, और इसके अंदर, और उसके बाद इसके अंदर की वैल्यू नेम की आयसा। सेम अगर आपको इसका भी ऐसे प्रिंट करना है तो आप कर सकते हैं। लेट्स से कि आपको ये दोनों साथ में प्रिंट करना है, ये दोनों, और मैं एक बार इसको कॉपी करके VS कोड में लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो मैं इसको एक बार इसको कमेंट कर देता हूँ। लेट्स से इसके नीचे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और ये यहाँ पे स्टूडेंट को इधर से, लेट्स से अभी मैंने इसको रन किया, तो हमने जो प्रिंट किया यहाँ पे ऐसा यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमने S101 का ये हमारी वैल्यू है, मतलब ये हमारी की है, इसके अंदर हमने नेम यहाँ पे प्रिंट किया, इसके अंदर एक नेम एक और की है, और उसके अंदर की जो वैल्यू है वो हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो वो प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं ऐसे ही सेम लेट्स से इधर पे ऐसे प्रिंट करूंगा, लेट्स से मेरे को नेम नहीं चाहिए इस बार, मेरे को ग्रेड चाहिए, और अगर मैं इसको सेम सिमिलरली ऐसे करूंगा तो ग्रेड ए आ जा रहा है। लेट्स से कि दोनों मेरे को साथ में चाहिए, तो उसको मैं कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एफ स्ट्रिंग, ये मैंने किया, एफ नेम एंड दिस, और यहाँ पे हमको स्टूडेंट, हमारा ये नेम है डिक्शनरी का, स्टूडेंट्स के अंदर हमारा S101 के अंदर भी ये स्टूडेंट डिक्शनरी है, उसके अंदर हमको S01 को एक्सेस करना है, और S01 के अंदर एक और डिक्शनरी है जिसमें हमको एक्सेस करना है नेम को, तो नेम को हम एक्सेस कर रहे हैं, और नेम एक स्ट्रिंग है, सो इसको मेरे को स्ट्रिंग में लिखना होगा। देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल लिया, यहाँ पे डबल लिया, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, एंड देन ग्रेड, एंड ग्रेड के अंदर हम लेंगे स्टूडेंट विद अ प्लेस होल्डर, ये प्लेस होल्डर है, आपको समझ तो आ रहा है ना, और यहाँ पे प्लेस होल्डर मैंने क्लोज नहीं किया, ये प्लेस होल्डर हमारी क्लोज होगी, और ये हमारी प्लेस होल्डर सेकंड में हम स्टूडेंट को एक्सेस कर रहे हैं, विच इज अवर डिक्शनरी, और स्टूडेंट के अंदर हमको क्या एक्सेस करना है, हमको S101 एक्सेस करना है, और उसके भी अंदर हमको एक्सेस करना है ग्रेड को, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन ग्रेड, ग्रेड हमारा स्मॉल है ना, हाँ ग्रेड। तो नाउ इफ आई रन दिस, एक सेकंड इसको डिलीट कर देता हूँ, तो आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, ऐसे ही लिखते हैं, फिर इसको मैंने रन किया, ओके एरर बता रहा है, क्योंकि ये दो दो है हमारी, एक को काट देता हूँ मैं। एक बार देखिए इसको, मैं प्रिंट कर रहा, ये सब तो समझ आ ही गया होगा। ये देखिए स्टूडेंट हमारा क्या है, स्टूडेंट हमारा डिक्शनरी है, प्लेस होल्डर के अंदर जो हमने लिखा है, और स्टूडेंट के अंदर हम ये एक्सेस कर रहे हैं। तो नॉर्मली आप जैसे प्रिंट करते हैं, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे कहाँ था, हाँ गेट चाइल्ड का मैंने वो डिलीट कर दिया था।
तो जैसे गेट आप यूज कर रहे थे, और मैंने एक दूसरा भी आपको बताया था कि आप डायरेक्ट ऐसे प्रिंट कैपिटल, जैसे आप इंडेक्स लेते हैं, और से जैसे ये चाइना हमारा कीवर्ड है, ऐसे जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसको, तो यही मैं प्लेस होल्डर के अंदर ले रहा हूँ, और ये चाइना कीवर्ड है, इसके अंदर कहाँ वो ये बीजिंग देगा। मैं एक सेकेंड इसको प्रिंट करूंगा तो वही देगा। चलिए मैं एक बार आपको समझाने के लिए प्रिंट कर देता हूँ। देखिए, बीजिंग आ रहा है, और उसके नीचे नेम और अनीसा और ग्रेड ए भी आ रहा है। तो देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है कैपिटल नेम है जिससे बीजिंग आ रहा है, यही सेम हमने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट और ये। तो इससे सबसे पहले तो हमको पता चल गया कि हमको S101 की वैल्यू एक्सेस करनी है। और उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू तो पूरी एक डिक्शनरी है, खुद की डिक्शनरी है। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है तो नेस्टेड डिक्शनरी है। वेल, ज्यादा ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी के अंदर हमको क्या एक्सेस करना है, वो हम यहाँ पे सेकंड में लिखा है हमने। नेम एक्सेस करना है कि ये डिक्शनरी स्टूडेंट डिक्शनरी, उसके अंदर हमने एक्सेस किया। और S101 हमारी क्या है? की है। की के अंदर हमको वैल्यू एक्सेस करनी है ना। सो लेट्स से की के अंदर हम क्या एक्सेस करेंगे, यहाँ पे तो दो की है, यानी दो वैल्यू है। एक नेम की वैल्यू है, एक ग्रेड की वैल्यू है। तो हमको नेम की वैल्यू पहले एक्सेस करनी है। सो नेम हम की यहाँ पे लिख रहे हैं, नेम की। और उसके बाद, तो अगर बेसिकली अगर मैं सिर्फ इतना भी प्रिंट करूँ, तो ये नॉर्मली जैसे ये प्रिंट हो गया नेम और की, और कॉमा करके मैंने यही सेम चीज ग्रेड और स्टूडेंट के साथ की। स्टूडेंट डिक्शनरी के अंदर S101 के अंदर हमको ग्रेड प्रिंट करवाना है, ये रहा ग्रेड की वैल्यू। सो दिस इज वेरी इजी। अगर आप दो तीन बार इसको अच्छे से गौर से भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो लेट्स मैं इसको एक बार काट देता हूँ ये बीचिंग वाले को, तो कमेंट ही बना देते हैं। तो सिमिलरली अगर आपको दूसरा वाला भी एक्सेस करना है, ये S102 का स्टूडेंट 102, या जो भी ऐसा आईडी है, स्टूडेंट आईडी है बेसिकली। लेट्स से 102 की मेरे को नेम ऐड करनी है, नेम कीवर्ड, ये कीवर्ड नहीं मतलब की बेसिकली। और इसका भी 102 का ग्रेड मेरे को करना है। और मैंने इसको अगर रन किया, तो अभी नेम ऊपर आ गई पहले का आयसा, एंड देन ग्रेड ए, और फिर नेम रोहन ग्रेड बी। तो बेसिकली दिस इज हाउ नेस्टेड लूप वर्क, नेस्टेड लूप, सॉरी मैं नेस्टेड लूप कह रहा हूँ, नेस्टेड डिक्शनरी वर्क्स। तो और आप इसको ऐसे बना भी सकते हैं। आप कोई भी वैल्यू में अगर चाहो तो इसके अंदर भी बना दूं। अगर मेरे को मान लीजिए इसका इंडिया का ये करना है, इंडिया के अंदर कितने सिटीज हैं, कितने मतलब कितने नेशनल टेरिटरीज, या मतलब कुछ भी मतलब कितने स्टेट है बेसिकली। हाँ, स्टेट अच्छा एग्जांपल है। स्टेट अगर मेरे को चाहिए तो मैं इसके अंदर ले सकता हूँ। यहाँ पे कहाँ गया, स्टेट के अंदर भी कैपिटल वगैरह करके न्यू दिल्ली के अंदर का कुछ अगर मेरे को ऐड करना है, तो इसके साइड में मैं कुछ और लिख सकता हूँ। न्यू दिल्ली इक्वल टू क्या, लेट्स से मैं जंतर मंतर लिख रहा हूँ क्योंकि अभी जंतर मंतर में कुछ हुआ भी था। जंतर मंतर मंतर। और ये इस टाइप से जैसे मैंने ये किया, अगर मैं ये सब कुछ हटा दूं और यहाँ पे रसिया में भी कुछ और ऐड कर दूं, जैसे रसिया में क्या, रसिया में यूक्रेन ऐड कर दूं मैं, कि कुछ और करके कि अटैक यूक्रेन, या मतलब यू आर गेटिंग इट ना, कि ऐसे आप ऐड कर देंगे और कमेंट कमेंट कह रहा हूँ, कर्ली ब्रेसिस के अंदर ऐसे रख देंगे। तो ये बेसिकली ये इंडिया हमारी की हो गई, और ये हमारी पूरी वैल्यू हो गई। और इस वैल्यू के अंदर खुद की डिक्शनरी है, जिसके अंदर न्यू दिल्ली एक अलग की है, और उसके अंदर जंतर मंतर अलग है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, लेट्स से मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ। ओके, या दोनों साथ में प्रिंट हो जाए तो एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आएगा। लेट्स से प्रिंट, प्रिंट में क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे को कैपिटल्स के अंदर मेरे, देखिए सबसे पहले मैं इंडिया एक्सेस करूंगा, मैं कैपिटल मेरा डिक्शनरी है, और उसके अंदर मेरे को इंडिया एक्सेस करना है, इंडिया। और इंडिया के अंदर मेरे को लेट्स से अभी तो हमने एक ही बनाया की वैल्यू, उसके अंदर भी, सो न्यू दिल्ली, ओ इसको इसके अंदर न्यू दिल्ली, एंड इफ आई प्रिंट दिस,
तो देखिए, न्यू दिल्ली के अंदर जंतर मंतर प्रिंट हो रहा है, क्योंकि बेसिकली इंडिया के अंदर एक और डिक्शनरी है, और उस डिक्शनरी के अंदर हमारे पास कीज हैं। और अगर मैं कुछ और भी इसके अंदर इंडिया के अंदर डालता तो आप वो भी प्रिंट कर सकते थे। तो मैंने तो न्यू दिल्ली लिया है, फिर उसके बाद जंतर मंतर प्रिंट हो रहा है हमारा, और यही ऐसे काम कर रहा है। तो नेस्टेड डिक्शनरी इज सो इजी। अगर आप थोड़ा सा भी इसको समझेंगे, थोड़ा सा सीख लेंगे, थोड़ा सा सीखने की क्या जरूरत है। बस देखिए, नॉर्मल डिक्शनरी आपको आती है, फिर नेस्टेड डिक्शनरी आती है। बस डिक्शनरी के अंदर तो डिक्शनरी है, डिक्शनरी तो कैसे काम करती है, नॉर्मली काम करती है। तो देखिए, इंडिया, इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली हमने प्रिंट कर दिया। मतलब इंडिया के अंदर हम खोज रहे हैं न्यू दिल्ली की, और वो न्यू दिल्ली की के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो दिस इज हाउ नेस्टेड लूप फिर से कह रहा हूँ मैं, दिस इज हाउ नेस्टेड डिक्शनरीज वर्क। तो मैं जंतर मंतर और ये सब हटा देता हूँ। तो मैं बैक टू अवर स्लाइड। सो मैंने अभी आपको नेस्टेड डिक्शनरीज बहुत अच्छे से समझाया, एक अपना अलग से भी अपने प्रीवियस डिक्शनरी में एग्जांपल चेंज करके भी आपको बताया। तो देयर इज समथिंग एल्स, चेंज द की one after another. First find the student ID and then find the field you want that record. Okay, ऐसे कर सकते हैं, यही है। देखिए कैसे करते हैं, स्टूडेंट आईडी जो हमने ये स्टूडेंट आईडी लिखी है चेन में बना के, उसके अगले जो आपको की चाहिए उसका रिकॉर्ड जो आपको फाइंड करना है बेसिकली। तो आप नेस्टेड डिक्शनरी कभी यूज कर सकते हैं जब आपको बहुत सारे रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड स्टोर करना है। सो इट इज बेसिकली लाइक दैट, परफेक्ट फॉर स्टोरिंग रिकॉर्ड विद सेवरल सेवरल फील्ड्स। देखिए, जैसे स्टूडेंट आईडी है, उसके अंदर हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, नेम, ग्रेड, और उसके बाद क्लास भी आ सकता है। और ग्रेड, ग्रेड मार्क्स है एक तरीके से, फिर क्लास ऐड कर सकते हैं, फिर उसके बाद सेक्शन ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और उसको अलग से प्रिंट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको सबसे पहले अपनी स्टूडेंट आईडी टाइप करनी है विद द की, मतलब विद द डिक्शनरी के नेम के बाद ब्रैकेट्स के अंदर, और उसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है वो टाइप करना है आपको, बस वो उसका की टाइप करना है बस। तो दिस इज हाउ नेस्टेड डिक्शनरीज वर्क्स। तो मूविंग फॉरवर्ड, डुप्लीकेट की स्लाइटली ओवरराइटेड, ये मैंने आपको बताया ना कि क्या है। यूएसए आपने पहले लिखा है, मतलब यूएसए वॉशिंगटन डीसी इज इक्वल टू कैपिटल, और फिर इसके बाद अब मैंने यूएसए को ही ओवरराइट हो गया, न्यूयॉर्क कर दिया मैंने। तो ये क्या करेगा, बेसिकली पाइथन ऐसा लेता है जो सेकंड आपने लिखा है ना, जो मतलब लास्ट में लिखा है आपने, अगर सेम लिखा है, जैसे यूएसए की आपका सेम है, तो उसकी वैल्यू चेंज कर देगा, ओवरराइट कर देगा, और सेकंड वाले को लेगा, प्रिंट कैपिटल करेंगे तो न्यूयॉर्क प्रिंट करेगा यूएसए का, वॉशिंगटन नहीं करेगा, क्योंकि हमने बाद में न्यूयॉर्क कर दिया, सो ओवरराइट कर देता है। तो अनलाइक लिस्ट, a dictionary cannot have two entities with the same key। लिस्ट के अंदर आप देख रहे थे ना, हमने कितनी भी सारी लिस्ट रख दी है, टू टू दो बार लिख रहे हैं, उसके बाद हेलो प्रिंट कुछ भी बार बार लिखे जा रहे हैं। डुप्लीकेट्स अलाउड है, बस इसमें नहीं है, लिस्ट में अलाउड है, इसमें डिक्शनरीज में अलाउड नहीं है। तो इफ एक्सीडेंटली रीयूज वन, गलती से आपने कर दिया, तो पाइथन ओनली कीप्स द लास्ट वैल्यू, जो आपने सबसे लास्ट में लिखा है ना, वही पाइथन रखेगा, विथ नो एरर और वार्निंग। कोई आपको एरर और वार्निंग नहीं मिलेगा कि डैम आपने तो दो बार लिख लिया यूएसए, ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो दिस इज द डिक्शनरी टूल किट एट अ ग्लैंस। आप यू कैन गो थ्रू देम। जैसे कि डिक्ट की क्या करता है, एक्सेस अ वैल्यू पैसेज इफ द की इज मिसिंग, इसलिए मैं कह रहा था कि आप गेट यूज करो, ये फिर से आपको बता दिया मैंने। एक्सेस अ वैल्यू सेफली, रिटर्न्स नन इफ इंस्टेड, अगर कोई वैल्यू नहीं होगी, अपनी की नहीं होगी, मतलब बेसिकली की की कोई वैल्यू नहीं होगी तो नन रिटर्न करेगा। और अगर आप ऊपर वाले यूज कर रहे हो तो एरर हो जाएगा। और डॉट कीज वैल्यूज एंड आइटम्स पता है, कीज क्या सिर्फ कीज के लिए है, और वैल्यू वैल्यू के लिए, और आइटम पूरा लिस्ट के लिए है, सॉरी डिक्शनरी के पूरा बोथ के लिए। अपडेट क्या करता है, ऐड अ न्यू पेयर और मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग वन। और पॉप की क्या करता है, रिमूव वन स्पेसिफिक पेयर, जो भी आपने पेयर वहां पे लिखा है, जैसे मैं यहाँ पे चाइना लिख दिया था, तो चाइना गायब हो गया, असली में तो नहीं हो सकता है। फिर क्लियर क्या करता है, पूरी डिक्शनरी को एम्प्टी कर देता है। तो नाउ क्विक रेफरेंस, आपने मैंने अभी आपके प्रीवियस वीडियोस में आपको लिस्ट, टपल और सेट बताया, तो आप उसका डिफरेंस साथ में देख सकते हैं एक बार। तो ब्रैकेट्स के मामले में लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल पैरेंथेसिस, एंड सेट एंड डिक्शनरीज दोनों कर्ली ब्रेसेस यूज करती है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो सामने है बिल्कुल। डिक्शनरी की एंड वैल्यू में होती है, और सेट सिर्फ वैल्यू होती है।
और एक्सेस बाय आप लिस्ट और टपल को इंडेक्स से कर सकते हैं, और सेट को मेंबरशिप यानी इन ऑपरेटर से। और की को क्या मतलब, डिक्शनरी को क्या, डिक्शनरी तो की से एक्सेस होती है। ये तो मैं कितनी देर से बता रहा हूँ आपको। ऑर्डर्ड, ऑर्डर क्या है ये, ओके हाँ, मतलब ऑर्डर है कि नहीं है, मतलब इंडेक्सिंग है कि नहीं बेसिकली। लिस्ट में है इंडेक्सिंग, टपल में है इंडेक्सिंग, सेट में हमको पता है सेट इंडेक्स नहीं है, नो। तभी तो हम इसको मेंबरशिप से करते हैं इनसे, क्योंकि इसमें अनऑर्डर्ड है ना लिस्ट, सेट बेसिकली। सेट की वैल्यू में बार बार प्रिंट कर रहा था तो बार बार इधर उधर हो जा रही थी, कभी कोई भी वैल्यू 1 इधर आ रहा है, 2 इधर आ रहा है, हेलो उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, चेंज होते जाता है। तो इट इज नॉट ऑर्डर्ड। और इनका इंसर्शन ऑर्डर है डिक्शनरी में बेसिकली, जैसे जैसे आप टाइप कर लो वैसे वैसे वो प्रिंट होते रहेगा। और एक और चीज है, जैसे मैंने आपको बताया ना डिक्शनरी में नीचे से वो डिलीट करने वाला, तो जैसे जैसे ऑर्डर में करते हो ना लास्ट में जो होता है, फिर उसको अगर आप वो करोगे क्या बोलते हैं, और पॉप आइटम से करते थे ना हम, नीचे से जो भी था इंसर्ट हमने किया है लास्ट वाला वैल्यू वो डिलीट कर देता है। तो क्या है फिर, चेंजेबल, yes, list can be changed, tuple no, tuple can't be, tuple is like a string, you can't change this। set चेंज कर सकते हो आप, उसकी बस वैल्यू यानी आइटम जो सेट के अंदर है वो इम्यूटेबल है, यू कांट चेंज दैट, बट आप ऐड और रिमूव कर सकते हो। और डिक्शनरी में तो हमने देखा ही कैसे चेंज करते हैं और सब कुछ अपडेट करते हैं हम बेसिकली। तो reach for a dictionary whenever your data naturally has names or labels rather than just a position, like a country and its capital, or a username and their scores। तो आप तभी डिक्शनरी यूज करना जब आपके पास नेम और लेबल्स हैं, दो पोजीशन है बेसिकली, मतलब लाइक अ कंट्री, और ये मतलब समझ गया ना, यू गेट द मीनिंग बेसिकली। So now let's see what we have done. So we have covered what dictionaries are. It is basically key and value pairs, and we have so डिक्शनरी में वैल्यू आप कीज से एक्सेस कर सकते हैं, नॉट बाय इंडेक्स, नंबर पोजीशन से नहीं। और गेट मेथड इज सेफ टू लुक अप एनीथिंग यू वांट, बेसिकली की आपको कुछ चेक करना है, सो आप गेट का यूज कीजिए। मैं हाईली रेकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज आप आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा बेसिकली। फिर अपडेट, एड्स एंड मॉडिफाई, पॉप एंड क्लियर एंड रिमूव, हमने ये सब देखा कि अपडेट क्या करता है, ऐड भी करता है, मॉडिफाई भी करता है। और पॉप पता ही है, पॉप कर देता है कोई भी स्पेसिफाई की एंड वैल्यू, और क्लियर तो सबको रिमूव कर देता है। और फॉर की वैल्यू इन डी आइटम्स, ओ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी किया ना पूरा अच्छे से, पूरा इसको विद द हेल्प ऑफ इटरेशंस, पूरा डिक्शनरी और की मतलब की एंड वैल्यू को अच्छे से मैंने प्रिंट किया था लास्ट में। तो दिस इज द वे, आप इसको याद कर लीजिए अगर आपका है तो, इज द स्टैंडर्ड वे टू लूप थ्रू अ डिक्शनरी। so this is very important। and reusing a key silently overrides the old value, no errors is raised। तो अगर आप कोई भी की को रीयूज कर रहे हो, जैसे मैंने यूएसए का एग्जांपल लिया था, वॉशिंगटन डीसी से हमने वापस यूज किया तो न्यूयॉर्क हो गया। और क्या प्रिंट हो रहा है, न्यूयॉर्क प्रिंट हो रहा है, जो आपने लास्ट में लिखा हो ना बाद में, जो ओवरराइट करने के बाद तो वही प्रिंट होता है। तो नाउ this is the question, practice question you have to do। the first question is the phone book। You have to create a dictionary called contacts, where the keys are the name of a string, keys are basically string, and the values are the phone number which are integer। Use get to look up the name in that isn't in your dictionary। तो वो नाम सर्च कीजिएगा जो आपके डिक्शनरी में नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी डिक्शनरी बना सकते हैं, अगर कोई एग्जांपल से लिया जाए तो लेट्स से कॉन्टैक्ट्स के अंदर आपने इलॉन मस्क का कॉन्टैक्ट लिया है, रॉबर्ट डोनी जूनियर का कॉन्टैक्ट लिया है, या फिर क्रिस हेवेंस का कॉन्टैक्ट लिया है, मोदी जी का कॉन्टैक्ट लिया है, मतलब कॉन्टैक्ट लिया है, या फिर ऐसे ऐसे कोई भी कॉन्टैक्ट लिया, फिर उसके बाद वो नाम सर्च कीजिए। जैसे मेरा नाम सर्च कर लीजिए, मेरा नाम नहीं है तो जो भी वो होगा आप नन हो जाएगा। तो आप ये कीजिएगा, दिस इज वेरी फन। So next is inventory update. Create a dictionary for a grocery store with the item and their prices। Use dot update to change the price of the one item and the new item to the list। तो बस अपडेट का यूज कीजिए और प्राइस को अपडेट कीजिए,
चेंज कीजिए और वन आइटम का ऐड और वो सब कीजिए। तो द डाटा लूप, तो राइट अ लूप दैट iterates through your grocery dictionary and print only the name of the item, the keys, and the cost more than 500. So these are the practice questions that you have to solve. It is very helpful for you. It will be very helpful for you. So this is all for this video. Let's meet in another video. Bye.